Okay, welcome guys to Super Session. We are going to talk about music theory today once again, but specifically scales and interval. What is an interval first of all? Whenever you hear the sounds, any kind of sound, they are called tones or sounds or notes. अब जो notes होते हैं ना, वो आपको सबको मालूम है कि there are 7 notes and 12 total notes होती है. अब इन हर एक के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम कहते हैं इंटरवल. एन इंटरवल इज अ डिस्टेंस बिटवीन द नोट्स. इंटरवल इज द स्पेस बिटवीन द 2 नोट्स. और मानो या नहीं मानो, फर्स्ट और सेकंड के नोट में जो नोट के बीच में जो साउंड होता है ना, वही क्रिएट करता है म्यूजिक. इट्स नॉट द फर्स्ट और सेकंड नोट, इट्स द कॉम्बिनेशन. वहां से वहां जाने का जो कॉम्बिनेशन है, दैट क्रिएट्स द म्यूजिक. इफ आई जस्ट प्लेड, this is not music, but if I played, so these are combination of notes और उनके बीच में जो sound आया, see this is one note, but मैंने बजाई तो 2 ना, ये दूसरा, ये इतनी सारी notes के बीच के intervals that created this particular music. But if I play like this, does this sound like music? बहुत सारे लोग ऐसे बजाते हैं and I have to tell them कि this is not the right way to play. मैं ये मेरे सारे सेशंस में कहता हूँ कि every sound or interval creates an emotion and that emotion you have the power to install that emotion in another person even without touching him or her. उसे टच किए बिना आप सारा इमोशन उसके अंदर डाल सकते हो. जैसे अरिजीत सिंह आप लोग में डालता है, राइट? ही हैज नेवर मेट यू, आप उसे कभी नहीं मिले हो, या फिर सोनू निगम, बट वो तुम्हें कैसे टच कर जाता है? थ्रू हिज म्यूजिक, थ्रू एवरीथिंग, राइट? सो ही हैज दैट पावर टू इंस्टॉल दैट एंड देन पीपल बिकम फैंस. To become that powerful, you have to understand how the sound works, how the interval works. There are 2 main types of intervals. They are whole steps and half steps. These are the 7 notes. और आप सबको मालूम होगा कि हर एक के sharps and flats होते हैं except 2 notes जिनका sharp और flat नहीं होता है, right? So C doesn't have a flat, C has a sharp. उस तरह से D has a flat, but D also has a sharp. I'll be writing down all the notes. E has flat, no sharp. F has sharp, no flat. G has flat, G also has sharp. A has flat and A has sharp. B has no sharp but it has a flat. C doesn't have flat but it has a sharp. So this is the linear way. जो दोनों same notes हैं, मैंने उनको एक बना दिया. Now if you count, it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. This C is just the repetition. So ये 12 notes इस तरह से बनती है और वो मेन थी 7. Now I'm coming to my point. जो इंटरवल है वो हर एक नोट के बीच का डिस्टेंस है, उसे कहते हैं. So इसे कहेंगे हाफ स्टेप, alright? जिसे हम H के नाम से जानते हैं, हाफ स्टेप्स. और C से D होल स्टेप. Understood? So if I ask you in exam कि what is an interval, what do you have to say? Can someone tell me? आगे जो लिखा हुआ था. It's the distance between the notes. And if I ask you for the example, this is the example. You can go from C to C sharp. You can go from C to D. That is a whole step. This is a half step. Understood? So half step और whole step इस तरह से. अब इसका मैं करूँगा क्या? चलो मैंने सीख लिया whole step and half step इसे कहते हैं. But what about it? सारेगामा पाधानीसा जो है वो पूरे को एक ऑक्टेव कहते हैं. That is called सप्तक. और अंदर वाले को क्या कहते हैं? तो इट्स सरगम और स्केल. ओके, इंग्लिश में आने स्केल कहवाતું હોય છે. A scale is a series of consecutive tones proceeding by whole steps and half steps. मतलब whole steps और half steps से बनी हुई टोन्स की, साउंड्स की सीरीज को हम कहते हैं स्केल. म्यूजिक इज जस्ट लाइक मैथ, लाइक उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं एंड वही अप्लाई होता है म्यूजिक में भी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज. सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ये आपको एकदम रट्टा मार देना है. इफ यू रिमेंबर दिस, everything comes down from it. Like consider this a mother
उसी में से पूरा म्यूजिक निकला है। सो जब भी आप कोई भी स्केल बनाना चाहते हो तो उसकी फर्स्ट नोट को रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट, ROOT, रूट। इफ आई वांट टू क्रिएट अ सी मेजर स्केल तो मेरी फर्स्ट नोट क्या होगी? सी, राइट। इफ आई वांट टू क्रिएट F माइनर स्केल, मेरी फर्स्ट नोट क्या होगी? F। इफ आई वांट टू क्रिएट B फ्लैट मेजर स्केल, मेरी पहली नोट क्या होगी? वेट, यू, शुभम, बोलो बोलो। B फ्लैट मेजर, B फ्लैट, जो नाम है वही, राइट। इफ आई से कि शुभम का नाम कहां से शुरू होता है? S से, राइट। इफ आई आस्क कृष्णा का नाम कहां से शुरू होता है? K से। इट्स एज सिंपल। इफ आई आस्क F शार्प मेजर का स्केल बनाना है तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? F शार्प से। नाउ व्हाई डिड आई एक्सप्लेन दिस? क्योंकि यही चीज किसी ने F बोला। F इज अ डिफरेंट नोट, F शार्प इज अ डिफरेंट नोट। रिमेंबर, F शार्प, G फ्लैट, ये सारे डिफरेंट नोट्स हैं, उन्हें वैसे ही बुलाया जाता है। आई कैन नॉट कॉल दिस अ G, आई कैन नॉट कॉल दिस अ G शार्प। मैं इसे G ही बोलूंगा, मैं इसे G शार्प ही बोलूंगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इफ आई वांट टू क्रिएट अ C मेजर स्केल तो C विल बी माय फर्स्ट नोट एंड लास्ट को हम कहेंगे ऑक्टेव, OCTAVE। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ आएगा हाफ स्टेप, बाकी सब में आएगा होल स्टेप। मैंने जो प्रीवियसली लिखा था आप सबको याद है कि किसका शार्प है, किसका फ्लैट है या क्या? ओके। अब अगर वो याद रहेगा तभी आप ये फॉर्मूला में स्केल रख पाओगे। बिकॉज अगर मुझे C से होल स्टेप लेना है तो मैं क्या करूंगा? होल स्टेप का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले? सो दैट इज द होल स्टेप व्हेन यू लीव अ नोट इन बिटवीन। ओके, सो C के बाद कौन सी नोट आती है? C शार्प और D फ्लैट। और इसके बाद क्या आता है? D। तो आई विल स्किप दिस एंड आई विल मूव टू D। तो यहां आएगा D। D के बाद कौन सी नोट आती है? D शार्प और E फ्लैट। और इसके बाद आएगा, अब मैंने यहां E क्यों लिखा? राइट, देयर इज अ होल स्टेप इन बिटवीन, दैट्स व्हाई E से मुझे हाफ स्टेप लेना है तो मैं यहां पर क्या लूंगा? F, राइट। हाफ स्टेप तो मुझे E शार्प। ओके, सो E doesn't have a sharp, D doesn't have a sharp, E doesn't have a sharp. E પછી ડાયરેક્ટલી F આવી જાય છે। F से होल स्टेप क्या होगा? G। G से होल स्टेप क्या होगा? A के बाद होल स्टेप क्या होगा? Why B? A के बाद A शार्प। Yeah, so there is an A sharp in between. B के बाद C क्यों आ गया? Because B sharp नहीं। So that's why directly B to C. You found out this through this formula. If you play the same thing on guitar, so it would sound something like this. This is सा। जो ये होल स्टेप और हाफ स्टेप्स हैं उन्हें मिलाकर 12 नोट्स होते हैं। सो हैव यू एवर नोटिस्ड योर गिटार फ्रॉम दिस साइड? हर एक के गिटार में यहाँ पर ये डॉट्स दिए गए हैं। हम लोग गिटार को हमेशा विजुअलाइज करके बजाते हैं। पियानो में इट्स वेरी इजी बिकॉज देयर आर ब्लैक कीज एंड व्हाइट कीज। सो पियानो प्लेयर को ऐसे याद रखना आसान पड़ जाता है बिकॉज दे नो कि ये C शार्प है, D शार्प है, F शार्प, G शार्प, A शार्प। बट व्हेन इट कम्स टू गिटार तो यहाँ पर तो सभी नोट सेम ही लग रही है। वी हैव नो क्लू कि शार्प और फ्लैट्स कहाँ पर है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि हर एक स्ट्रिंग में 0 से 12 तक सारी नोट सिर्फ एक बार है, ऑब्वियसली एक ही बार, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर दो निशान दिए गए, दो डॉट्स, दैट डिफाइंस कि यहाँ पर एक ऑक्टेव खत्म हो जा रहा है। दैट इज वेयर द सारे गामा पाधा निसा एंड ऑल ऑफ दिस नोट्स। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पर 12 नोट तक कितने सारे गामा पाधा निसा बजा सकता हूँ। सो एक ऑक्टेव में सिर्फ एक ही सारे गामा पाधा निसा बजेगा। रिमेंबर दिस, मतलब देयर आर 12 नोट्स तो उसमें सिर्फ एक ही बजेगा। तो ई से बजाएंगे तो 12 पर खत्म हो गया, 1 ऑफ। यहां से दूसरा हम बजा सकते। अनदर मैथमेटिकल क्वेश्चन, सारी स्ट्रिंग पर 12th फ्रेट तक एक स्केल कितनी बार बजा सकता है? 6 टाइम्स गाइस, राइट।
क्योंकि एक ही बार हुआ, ये दूसरी बार, तीसरी बार, इट्स ओनली 6 टाइम्स पॉसिबल। बट इफ आई आस्क यू कि सारे को कंबाइन कर लो, सब कुछ कंबाइन 12th फ्रेट तक की, देन वी कैन क्रिएट टन्स ऑफ सारेगामापाधानीसा। नॉट 1 2 3 4 5 6, वी कैन क्रिएट एज मच एज यू लाइक, बिकॉज यू कैन यूज ऑल ऑफ these frets and you can go down. Let me show you how. Starting from here. Every single note पर हर एक सारेगामापाधानीसा बन जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा ट्वीच कर दूं तो you can create even more. Just like I said कि permutation combination से आप और भी बना सकते हो। ये सारा जो झमेला है ये सरगम का, वो हमें किस काम में आएगा? So now comes the interesting things. When a singer sings, he doesn't sing just like that कि शुरू कर दिया। अगर वो just like that ही करेगा तो बाकी सब musicians उसको कैच कैसे कर पाएंगे? If you know that you are singing from D major का scale and if I also know कि मैं भी D major के chords जानता हूँ तो I'll be able to support you. But I don't know anything. मैं गिटार सीख लिया YouTube से, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कौन से पेज पर हूं मैं। सो YouTube पर सिर्फ सिखाते हैं कि A minor G C D, कैपो रख दो एंड देन प्ले A minor C G D, बट that is absolutely wrong. If the singer knows the scale of D major and if I know the scale of D major, I'll be able to play the same notes as the singer sings. मतलब सिंगर गाएगा D E F sharp G A B C sharp D, दो नोट्स भी चेंज हो ना तो मैं सिंगर के साथ सही पेज पर नहीं आ पाऊंगा। आई डोंट नो कि उसकी नोट्स कौन सी वो गा रहा है। सो हम लोग ये नोट्स कैसे याद रखते हैं? फ्रॉम द स्केल्स, उसे की भी कहते हैं, KEY की। डी की में कौन सी नोट्स आती है? सो यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला विच आई शोड यू, 3 to 4 half, 7 to 8 half, तब जाकर आपको डी की नोट्स मिलेगी और वही नोट्स आप बजा पाओगे। अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, दे नो ऑल द कीज, शार्प्स, फ्लैट्स, मेजर, माइनर, ऑल द कीज। और जब सिंगर बोलता है कि अच्छा सर सी शार्प से बजाओ, सो ही नोस कि सी शार्प से कौन से कॉर्ड्स आएंगे, कौन से नोट्स आएंगे। या फिर इफ देयर इज अ बॉलीवुड सॉन्ग दैट रिसेंटली केम, अ ट्रेंडिंग सॉन्ग, एंड वो आपको गिटार पर बजाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे सुनोगे, सुनकर आप फिगर आउट करोगे कि कौन सी की में है वो। और वो की आप कैसे फिगर आउट करोगे मालूम है? By knowing the scales. So if you know the C sharp major का scale and the singer sings in C sharp major, you will right away know कि chords कैसे बजाने हैं. Anyone tell me one song जिसे हम सुनेंगे and we will try to crack it right away. I'll show you how. Okay. Now, the first thing I'll do is I'll listen to the first note. इसमें दूसरी एक चीज़ ये आती है कि आपके ईयर भी ट्रेन होने चाहिए, तब भी जाकर आप फिगर आउट कर पाओगे कि ये कौन सी की में और मैं कौन सी की में। ना 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 ना, so first I'll mimic ना 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 ना। Okay, so he is singing from C sharp. Now let's compare it. Okay. So I didn't even take the entire line because our mind, our brain can get lost. If you hear so many notes, तो आप बहुत confused हो जाओगे. That's why I ask student कि सिर्फ एक line सुनो उसको. ना 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 ना. अब उसके बाद you can go to the next line. So these are all intervals. अब मेरे को ये मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि आई नो कि इट वॉज अ होल इंटरवल, और ये साउंड मेरे दिमाग को मालूम है कि ये साउंड ये वाला नहीं था, हाफ, इट वॉज होल।
ही यूज द हाफ। अब ये तो चलो हमने नोट्स ढूंढ ली, बट नाउ इसकी की ढूंढने के लिए विल हैव टू यूज द फर्स्ट नोट। ही स्टार्टेड विथ C sharp 7। नाउ हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो फर्स्ट नोट बंदा गाता है या बजाता है वही उसकी की होती है। जस्ट लाइक आई शोड यू इन द रूट, राइट? CDEFGABC में रूट वॉज व्हाट? C, राइट? वो C था। सो उसी तरह से अगर ये गा रहा है यहाँ से, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी दैट। नाउ लेट्स चेक दैट एज वेल कि उसके साथ गिटार जा रहा है या नहीं। नाउ देयर आर सर्टेन कैडेंसीज, जैसे कई लोगों ने आप में से कॉर्ड सीक्वेंसेस किए होंगे, राइट? 3/4, 4/4, 6/8, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड कैडेंसीज या कॉर्ड सीक्वेंसेस। सो ये कैडेंस जो होती है ना, वो भी बनी हुई होती है। मतलब हम बना सकते हैं अपनी खुद की भी। अगर कोई आप नया गाना लिख रहे हो तो आप खुद की भी बना सकते हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत आर्टिस्ट सेम की सेम कैडेंस यूज करते हैं। मतलब एक इस कॉर्ड के बाद कौन सा कॉर्ड आएगा। सो देयर आर सर्टेन कॉर्ड्स एज वेल। सो दिस गाय यूज दिस। So this is how you figure out the songs. सबसे पहले उसको सुनना होता है, you have to apply that and then you have to figure out the key. If you know the key, so he was in the C sharp minor वाली key. That's why the C sharp minor was my first chord. And then he also added like 7th. So these are a type of flavors. मतलब एक ही chord में अलग अलग flavors हो सकते हैं. So he used this. अगर मुझे म्यूजिक थियरी नहीं मालूम होती, आई वुडंट बी नोइंग कि ये क्या गा रहा है या कहाँ से गा रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ वी फिगर आउट द कॉर्ड्स। सो हियर यू कैन सी द म्यूजिक फर्स्ट ऑल, और उसके पीछे एक बेस रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू कैच दैट बेस, बिकॉज बेस लाइन पूरे कॉर्ड्स ही होते हैं जिसके ऊपर पूरा गाना बना होता है। दिस इज द again C sharp. So let's hear it. Guitar is going like this. This is called triangle. First note ये थी, but he sang from here. I can see the whole steps and half steps around here. So when you see the whole steps, like मैंने ये notes बजाई, तो यहाँ पर एक हाफ स्टेप है, यहाँ पर एक हाफ स्टेप है, और यहाँ पर ये होल स्टेप है। अगर सारे का पता नहीं सा अगर ऐसे देखे ऊपर से तो दिस इज एक्चुअली द स्केल ऑफ A मेजर, बिकॉज यहाँ पर सारे गाँव बज रहा है A से। A इज द फर्स्ट नोट। So I never tried this song, but I understood कि it was on the A major scale, and then the cadences he played like
when you know the chords of a particular scale, you can easily crack it this way. So learning all the scales and all the chords is again very much important. इस तरह से हमें ये गाना क्रैक करना होता है. So when you sit and when you just want to crack it by listening, तो वो भी possible है. You have to roam around, find the notes. आपको ये मालूम होना चाहिए कि sharps मतलब हाई जाना है, लो मतलब लो जाना है. And then you also should be knowing कि ये बंदा हाई गा रहा है या लो गा रहा है. Someone tell me, मैं ये एक पार्ट पूछूंगा कि उसने हाई गाया या लो. ये नोट्स ना 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 let's check. Hi. Then he comes back. He went high and then he came back. So if I don't know कि वो ऊपर गया या नीचे, so I'll be roaming around. But अगर मैं वो सुन पाता हूँ कि अच्छा he went high, but then he also came back. So कई बार हमें high मिल जाएगा, फिर हम high ही ढूंढते रहेंगे. उसका ऐसा आंसर नहीं होता. Music always goes like this. It goes and comes back and keeps on. That's why the frequencies are like this, right? इसमें क्या हो रहा है? पिया में आप जा रहे हैं. Okay. और so अपना बना ले पिया. So it was high, then he went low and then high. अपना बना ले पिया, अपना बना ले. देखा? So कैसे ऐसे ही जा रहा है. It is never just high or never just low. ये कैसे मालूम पड़ेगा? When you know the whole steps and half steps. कि कौन सी तरफ जा रहा है whole step और half step. तब मालूम पड़ेगा these kind of things. So that is how we can crack the songs.